जय हिंद, जय भारत। तिरंगा लहराए नभ में, शान हमारी ऊंची हो, वीरों की बलिदान कहानी सदा हृदय में गूंजी हो। संविधान का दीप जलाकर हमने पथ को पाया है, संघर्षों की इस धरती पर नया सवेरा आया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रेवरेंड फादर राजेश, वाइस प्रिंसिपल सिस्टर दीपा, सिस्टर मेरी जोन, my colleagues and dear students, a happy Republic Day to you all. Today, we have gathered here to celebrate the Republic Day of our country. This day is not just a reminder of the celebration, but a reminder of our nation's sovereignty and democracy. The day marks the moment of culmination of our freedom, the struggle our freedom fighter did, and set the foundation for a nation based on liberty, equality and fraternity. The Constitution drafted by our visionary leaders by the Constitution Assembly under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar reminds us of being a responsible citizen of our country in order to enjoy the fundamental rights. As we hoist and unfurl our tricolor on this day and celebrate this day with joy, let us also remember the freedom fighters of our nation, the great leaders and the soldiers on the borders whose sacrifices and dedication to serve and protect the nation brings us on this day. And we also move ahead on the path of growth and success. So let us begin this day by remembering the God. All of you join your hands and close your eyes for prayer. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen.
India is my country, and all Indians are my brothers and sisters. I love India and feel proud of our traditions and great heritage. I shall always try to be worthy. I shall always respect my parents, teachers, and elders, and be courteous to all. I promise to be loyal to my country and countrymen. In their prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. Reverend Father Rajesh to come over here and unfurl the national flag. Good morning to all of you. Wish you all a very happy Republic Day. आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मेरा भाषण शुरू करने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो हमारे भारतीय संविधान है वो किसने किसको दिया? ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, जो यूपीएससी एग्जाम, मेन नो एग्जाम, दिस इज द वन वर्ड क्वेश्चन इज आस्क्ड। ये भारतीय संविधान किसने किसको दिया? अगर कोई सही उत्तर देगा उसके लिए मैं असेंबली के बाद इनाम दूंगा। बी आर अम्बेडकर टू इंडिया। Yes. Very good. The correct answer is we the people of India giving to ourselves, the people of India. So give him big round of applause. B.R. Ambedkar only headed the commission which was constituted to make the constitution. But the constitution is given to ourselves. हम खुद जो भारतीय सिटीजन्स हैं, हम लोग खुद अपने लिए देते हैं। और ये भारतीय संविधान में कुछ मौलिक अधिकार हैं जो अपने आप को हम लोग प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने अधिकारों के लिए हम लोग लड़ सकते हैं, जिसको हम हासिल कर सकते हैं। जब हमें अधिकार मिलता है तो उसी के साथ साथ हमें उसके साथ जिम्मेदारियां भी मिलती हैं।
जब हमें कुछ दिया जाता है, कुछ अधिकार दिया जाता है, उसी के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ जाती है। वो अधिकार के साथ साथ हम अपनी जिम्मेदारियों को पालन करें। अगर हम इन जिम्मेदारियों को पालन नहीं करते हैं तो उसको सही करने के लिए कुछ कानून व्यवस्था बनाई जाती है, और उसको हम लोग जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते हैं या किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं, उनको हासिल करने से वंचित करते हैं, तो उसके लिए कानून बनाया जाता है। किस तरीके से उनको दंड दिया जाए, किस तरीके से उनको सुधारा जाए, ये सभी बातें हमारे भारत के संविधान में लिखा गया है। तो आज के दिन में हम लोग क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं? हम लोग 26 नवंबर को भी कुछ मनाते हैं। क्या मनाते हैं? क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे नवंबर में क्यों मनाते हैं? बिकॉज इट वॉज अडॉप्टेड, क्योंकि उस समय वो जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, जो बना रहे थे, उसका खत्म हुआ था, संपन्न हुआ था, वो कार्य संपन्न हुआ था। इट वॉज अडॉप्टेड। लेकिन जो आज के दिन में जो हम मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं, आज के दिन में ये जो एक्ट है वो लागू में लाया गया। किसी भी एक्ट को लागू में लाने के लिए उसको पार्लियामेंट में पास किया जाता है। ये किसी को पता है ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखना कब शुरू हुआ था? ये कमीशन जो या 1946 में इसका शुरुआत हुआ था, कमीशन गठित की गई थी, तो इसको लिखना शुरू हुआ था। इसका संपन्न हम लोग 49 में इसका खत्म हुआ। उसके बाद फिर 1950 में इसका लागू हुआ। तो इसलिए हमारे लिए जो हर एक भारत का जो सिटीजन है, नागरिक है, हमारे लिए एक धर्म ग्रंथ जैसा है जो भारत का संविधान, जिसके आधार पर हमारा जीवन चलता है। तो इसलिए हर एक नागरिक को भारत के संविधान के बारे में जानना और उसी को पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। तो इसको लिखने के लिए, इसको लागू करने के लिए कई सारे लोगों ने अपना त्याग के द्वारा, अपने बहुमूल्य समय देकर इसको लिखा था, लागू किया था। और हम लोग गर्व करते हैं, हमारा जो संविधान है सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द लॉन्गेस्ट इन whole world, and there are also countries who don't have their constitution. There are countries. और हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था। किसी को पता है ये इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास हुआ था, कहां पर पास हुआ था? किसी को पता है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, where it was promulgated, किसी को पता है? क्योंकि हमें पता है कोई भी एक्ट लागू होने में हमारे भारतीय संविधान में जो पार्लियामेंट है वहां पर जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन्हीं के द्वारा वो पारित किया जाता है, पास किया जाता है, और उसके बाद वो लागू में आता है। लेकिन जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये कहां पर पारित हुआ था? कोई जानते हैं? टीचर्स, स्टूडेंट्स? It was promulgated in England, UK. It was not in India, because we were under UK government, British government. So this Indian Independence Act was promulgated 1947, 15 August in British government. It was not in India. So this all
the details we should know. As you are growing as a students, we should know what is the background of our constitution, what is the background. क्योंकि आजकल हमारे जो नेता हैं कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. आज सुबह भी मैं देखा था कुछ टीचर लोग आके हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल रहे थे. तो ऐसे कई सारे नेता हैं जो भाषण देते हैं, जो गणतंत्र दिवस के दिन भाषण देते हैं, सबको बताते हैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं. तो कंफ्यूज हो जाते हैं. लेकिन हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, जो भविष्य है, हमारे भारत के भविष्य है, हमें ये सही तरीके से मालूम होना ज़रूरी है. इसलिए हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे, ऑल द नेशनल फेस्टिवल्स. इसलिए हम लोग मनाते हैं ताकि हम लोग उसके बारे में जाने और उसके लिए जितने भी लोगों ने त्याग किया था, अपने जीवन की कुर्बान की थी, उन्हीं के सम्मान में उनको हम याद करें और उनका आदर सम्मान करें. तो इसलिए जब हम छात्र छात्राएं हैं, अभी से हमें हमारे देश के प्रति जो प्यार है, जो सम्मान है, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए. हमारे दिल में जो देशभक्ति की भावना है, वो ऊर्जा को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है. क्योंकि हमारे देश अलग अलग राज्यों से विभाजित किया गया है. हम लोग कई बार इसी लड़ाई में ही अपने जीवन को खत्म कर देते हैं. मैं तमिलनाडु का हूँ, मैं पंजाब का हूँ, मैं यूपी का हूँ. तो अलग अलग राज्य हैं, लेकिन आखिरी में हम सब मिलकर एक भारतीय हैं. वी आर ऑल इंडियंस. अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, मैं क्रिश्चियन हूँ, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, ये सब हम सबों को एक भारतीय के रूप में एक साथ मिलाता है, ताकि हम अपने भारत देश के लिए, हम उनकी उन्नति के लिए हम लोग कार्य कर सकें और एक भारतीय होने का गर्व करते हुए अपने जीवन की उन्नति कर सकें. तो इसलिए अगर हम अपने भारत देश की गौरवान्वित कर सकते हैं, तो अपने कर्तव्यों को पूरा करने के द्वारा हम ये कर सकते हैं. केवल जब हम लोग स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस में आकर जब हम लोग चिल्लाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भारत माता की जय, ये चिल्लाने से, ये स्लोगन जोर जोर से चिल्लाने से हमारा देश ऊंचा नहीं होगा. हमारा देश तभी ऊंचा होगा जब हम अपने देश की उन्नति के लिए अपना योगदान दें. छोटे छोटे अच्छे से पढ़ाई करने के द्वारा, अपने माता पिता के आदर करने के द्वारा, अपने बड़ों के आदर करने के द्वारा, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के द्वारा अपने देश की झंडा ऊंचा कर सकते हैं. तो इसलिए आज के इस गणतंत्र दिवस में मैं अब सभी से आग्रह करता हूँ, हमारे देश की उन्नति के लिए आप लोग अपना योगदान दें, ताकि देश से क्या मिलता है. क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं, अगर सड़क गंदा है, हम लोग दूसरे लोगों को गाली देते हैं. ये म्यूनिसिपालिटी इंचार्ज हैं, जो हमारे नेता हैं, तो उन्हीं को गाली देते हैं. लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है, अगर हम खुद गंदा करते हैं तो उसको साफ करना भी आना चाहिए. ये हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हम अपने घर को साफ रखें, उसी के द्वारा हमारा देश पूरा स्वच्छ और स्वस्थ हो जाएगा. तो इसलिए आखिरी में फिर से एक बार आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं. आप सभी छात्र छात्राएं एक दिन हमारे भविष्य को, हमारे देश के भविष्य को उज्जवल बनाएं और उसी के द्वारा अपने जीवन की उन्नति की ओर आगे बढ़ें. जय हिंद, जय देश. Thank you, Father, for your precious word. Once again, I wish you all a happy Republic Day, and I hope the instructions and motivating words of Father will ensure something, that you will respect our nation and continue doing little work towards growth of our nation. Thank you, one and all.
Now children, please go to your classes, take your things, bags, etc. Then